overwhelming. I mean, still it has not been started, and it is somewhere we are reaching to the 300 participants. And I welcome to our Honorable Chancellor Sahab, Dr. Rajat Mathurji. Very, very grateful, sir. You are giving your precious time and with us. But before I am over to my Honorable Chancellor, I will welcome to Dr. Tushar K. Nath, Founder, Vice Chancellor, Sage University, Indore. We were in touch with Dr. Varun Kapoor while we were in Indore. So thank you, sir. Thank you. And it was his basically endeavors. And he, once I was looking for on this topic, so we found that who better than Dr. Varun Kapoor can be. So welcome to all of you, and let us be enlightened by Dr. Varun Kapoor. I'm over to Dr. Rajat Mathur, sir, Chancellor, sir. Thank you very much, Vice Chancellor Sahab. Thank you very much, Kuldeep ji. And a very, very warm welcome to sir, I will not call you a police officer, I will call you a professor, because with the kind of degrees and honorary PhD that you have, it is good that we in the academic field call you a deadly combination of police and yes, absolutely. Everyone should be careful. Absolutely, sir, absolutely. So, illustrious CV, and you've been working in cybersecurity since, I believe, 2011. And that's a pretty decent number of years that you have put in. I had actually taken some questions from so can you hear me clearly? Yeah, a little less, but yes, I can. Oh, okay, let me just revise my. Is this better? Yes, it is. Right. Thank you. So I've been taking questions from some of my friends, colleagues, and I have kind of understood that most of us are aware of what cyber crime is and what are the basics of cyber security. We have a very, very rudimentary understanding of this. And that is the reason why you are there to enlighten us. I would like to divide this session into 3 sections, sir, with your permission. The very first would be device safety. The second would be the virtual world safety. And the third would be the regulatory part of cyber safety. So, as far as devices are concerned, today we are living in a world where virtually the devices have become part of our body. So, and I've received hundreds of questions on this, and I'll come straight to the point. The question from most of our viewers is, how can we know, first of all, that a malware has been installed on our device? I think it's better that I first talk something about, see, all the things you're asking, it is part of the presentation which I can give you. Sir. And after that, if there are any questions left, I think then we can take it up one by one. I think that would be better to lay the groundwork first and then go to the questions. If you permit, I think that would be a better way. Perfect, sir. If there's anything left after my talk, then you can definitely ask. Absolutely, sir. So shall I start? Because Please, it will take some time. I think everyone will get a lot of knowledge in this, and then we, if there is anything left, I'll answer after that. Absolutely, sir. Okay. So good morning, good afternoon to all the viewers. Do you want to want me to speak in English only, or you want me to speak in English and Hindi and combination? So whatever you are comfortable with, we are good with Hindi and English both. People also understand Hindi very well, so I will talk in both languages, so that everyone understands everything. So good afternoon, everyone, and welcome to this presentation about cybercrime, as you have been told, and the security concerned with it, cybersecurity. In my opinion, it is one of the biggest challenges to public security. Agar there are one or two main challenges in today's day and in the coming time, it is cybercrime, cybersecurity. One of the main challenges. There are many challenges, many difficulties, but एक दो जो top challenges हैं, उसमें cyber security जरूर आता है. You have just heard my resume. I have worked in 5 continents as a police officer.
not for घूमने नहीं गया था मैं, only I had gone there as a police officer. I worked in Africa, in Europe, in North America, Central Asia, South Asia. So I worked nearly all over the world as a police officer. So I've seen crime all over the world, security situation all over the world, and in all types of crime also, from the smallest crime to the biggest crime, and I've dealt with it also. So I am talking from the point of view of my experience, which stretches not only in India but all over the world. And from that experience, I can tell you that it is one of the main challenges to public security in today's time and in the coming time. So it is a big threat. कुछ छोटी बात नहीं है. It's a very big threat. It sounds very small. People are very, cybercrime, cyber security. Okay, but it is a very big threat. And today it is. Tomorrow it is going to be even bigger. So we must know about it, learn about it. As the Honorable Chancellor said, there are many things we know. There is no doubt about it. See, मैं हमेशा बोलता हूँ crime control, crime से लड़ना है तो एक sense की जरूरत है, वो है common sense. You only need common sense to be protected from crime. But unfortunately, that sense deserts us when the time comes. And deserts us why? That I'll tell you. Because our response to that situation is not very good. So why am I saying this? I'm saying this because see, traditional crime, जो परंपरागत अपराध हैं, चोरी, लूट, डकैती, murders, attempt to murder, abduction, rape, molestation, this is traditional crime. Today's age of this lockdown period, traditional crime is going down very fast. ये लॉकडाउन है, ये जो सब बंद है, और इसका कारण क्या है, ये बड़ा इजी अंडरस्टैंड करने के लिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट. देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं है, सब बंद है. हम लोग अपने अपने घर में हैं, इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी, दैट्स आल्सो श्योर. बट बिकॉज हम अंदर हैं, कोई मूवमेंट इंटरेक्शन नहीं, तो ट्रेडिशनल क्राइम में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है. ये भी सही है, पर ये भी सही है कि साइबर क्राइम में ऐसी कोई गिरावट नहीं आ रही, और मेरे विचार में तो साइबर क्राइम तेजी से बढ़ ही रहा होगा. इसका कारण क्या है? मैं हमेशा बोलता हूं कि साइबर क्राइम इज द ट्रू स्टे एट होम क्राइम. इट्स अ ट्रू स्टे एट होम क्राइम. मतलब जो क्राइम करते हैं वो भी घर बैठे बैठे क्राइम कर देते हैं, और जो क्राइम का शिकार होते हैं वो भी घर बैठे बैठे इसका शिकार हो जाते हैं. ना आपको कहीं जाना है, ना आपको किसी से मिलना है, और फिर भी आप क्राइम के शिकार हो गए, फिर भी आपने क्राइम को घटित कर दिया. So it is a true stay-at-home crime. Anyway, it's a very big challenge for public security, and आज के दिन में it is even bigger challenge. So you have to be even more careful. And as I said, it is all common sense. So what I'm going to say today, maybe आप लोगों को सब कुछ मालूम है. I'm not doubting that. Maybe you know some parts. Maybe you know even everything. But even if you know everything, please listen again. Listen carefully. क्यों? क्योंकि once you listen to something again and again, then it becomes part of your system. Right? And I always say that the best word when you have to tackle a crime situation or an accidental situation, कोई भी घटना, दुर्घटना, कोई भी crime, किसी भी situation में आपको अगर अच्छे से अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो एक शब्द बहुत important होता है, वो है response. आपका response उस situation को, response सही है तो फिर आप better ढंग से बचोगे, response सही नहीं है तो फिर आप उसका शिकार हो जाओगे. और response, कौन सा best response? Automatic response. त्वरित, इमीडिएट. आपको सोचना ना पड़े कि क्या करना है. कोई आपके सामने चाकू लेके खड़ा है तो क्या आप सोचोगे क्या करना है? आप नहीं सोचोगे, आपका रिस्पांस ऑटोमेटिक होगा. वो कब होगा? जब वो आपके सिस्टम का पार्ट होगा. राइट? सो आई टोल्ड यू, इवन इफ यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से टुडे, प्लीज लिसन टू इट वंस मोर, because it will become part of your system and the response will be automatic, which is the best response for any situation of crime or accident or anything. Includes cybercrime. Definitely cybercrime, because people's response to cybercrime is not automatic, because it's not part of their system. That is why it is causing a lot of problem. एकदम से response नहीं आता, automatic response नहीं आता, problem हो जाता है. छोटी सी बात, घर से बाहर जाओगे ताला लगाते हो ना, कोई आपको बोलता है ताला लगाओ, कोई नहीं बोलता. Part of your system. Automatic response. You have to lock. So it's same with cyber security, cybercrime, but people's response is not automatic. And that's the problem. So if you are listening, listen again. If you know it, also listen again, because then your response will be better. It will be automatic. That's the first thing. Only one or two things I'll say about the groundwork. Then I'll tell you some concepts about cybercrime which are important to know, and then about the main crimes which are occurring in this lockdown, especially. Okay. So I'll do it quickly. So first thing I've said, automatic response, best response. Even if you know, listen again. The second, जो दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये है कि मैंने शुरू में बोला कि ये साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा थ्रेट है साइबर पब्लिक सिक्योरिटी के लिए. क्यों है? Why is it such a big threat? You can ask that question very well. I will tell you why. In my experience, see, whatever I am speaking, it is from my experience. I have not read it anywhere. It's not any book, not by any author and all that. It is my experience. मेरा अनुभव इस फील्ड में nearly 10 साल का है.
और 10 साल का अनुभव शायद ही किसी पुलिस ऑफिसर का हो इस क्षेत्र में। और सबसे अच्छी बात है, मेरा कभी काम भी नहीं था साइबर सिक्योरिटी, मैं कभी उस विंग में पोस्टेड भी नहीं था, मैं तो अन्य जगह पोस्टेड था। आई टुक इट अप as just an interest and it has become my passion and mission now, so I do it with my heart. So whatever I'm telling you is my experience. So पहली बात ये है कि ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों है? ये इतना बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये अगर असली दुनिया जैसे है, तो असली दुनिया में बहुत सारे अपराध होते हैं, राइट? बहुत सारे अपराधी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत चैलेंजेस, डिफिकल्टी, सब कुछ है। असली दुनिया है ना? There's so many problems. तो एक्चुअली क्या है, ये इतना बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि ये दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी अपराध घटित होता है, मैंने मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, वो उन सबसे अलग अपराध है। इट्स अ डिफरेंट ऑफेंस फ्रॉम एनी ऑफेंस व्हिच अकर्स इन एनीवेयर, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई इज इट डिफरेंट? बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये असली दुनिया का अपराध है ही नहीं, ये इस दुनिया का अपराध है। डिवाइस बेस्ड वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, आप उसको कोई भी नाम दो, ये असली दुनिया का अपराध नहीं है, ये डिजिटल दुनिया का अपराध है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर डिजिटल दुनिया, ये एक दुनिया थोड़ी है, मैं तो सिर्फ फोन पे बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चैटिंग कर रही हूँ अपने दोस्त से, तो एक्टिविटी कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, आई एम नॉट, बट यस, आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, पर आप उस एक्टिविटी के माध्यम से, एक डिवाइस के माध्यम से एक दुनिया से जुड़ रहे हो, और उस दुनिया को बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। और वो भी एक दुनिया है, डोंट मेक अ मिस्टेक दैट इट्स नॉट अ वर्ल्ड, इट इज अ वर्ल्ड। और जैसे इस दुनिया में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, क्राइम, क्रिमिनल्स इतने हैं, इस दुनिया में भी है, उतने ही है, शायद ज्यादा हो। और सबसे बुरी बात यह है कि वो दिखते भी नहीं। इस दुनिया में आपको कोई खतरा नहीं दिखेगा, कोई क्रिमिनल नहीं दिखेगा, कोई क्राइम नहीं दिखेगा जब तक इट इज नॉट टू लेट। ओके, सो दिस वर्ल्ड इज आल्सो वर्ल्ड, it is a world which has equal number of crime, criminal difficulties, but they are not even visible, and you have to give, we don't even consider that. You may ask me now that it is a crime of a different world, ठीक है, मान लिया, it is a crime जिसमें criminal और problem दिखते भी नहीं है, ये भी मान लिया, but फिर भी इतना बड़ा challenge क्यों है? Why are you saying that? तो उसका आंसर भी एक है, उसका आंसर ये है, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए इतना बड़ा challenge। मतलब we are human beings, we are born into the real world, we are born for the real world. हमारे सारे attitudes, behaviors, opinions, instincts, सब कुछ असली दुनिया के लिए, वर्चुअल दुनिया के लिए नहीं है। जो भी एक दुनिया है, मैंने आपको पहले बताया, but are all these things are not for the virtual world, they're tailored for the real world, because we are born into the real world and we're supposed to live in the real world. I'll give you an example. There's one instinct, human instinct, basic instinct, जो आप में होगी, आप इंसान हो तो ऐसे ही होगे। एक instinct है, उसे बोलते हैं what you see is what you believe. जो आपको दिखता है, आप उस पर विश्वास करते हो, जो आपको सुनता है, आप उस पर विश्वास करते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद देखा है, सुना है, और फिर आप उसके अपना ओपिनियन बनाते हो, एक्शन, रिएक्शन, सब कुछ करते हो, एटीट्यूड, बिहेवियर, based on what you have seen, what you have heard, because you've done it yourself. Now, in this world, virtual world, अब आप ये बताइए, अगर ये इंस्टिंक्ट इस दुनिया में लगाने लग जाए तो आप सही होगे क्या? आप सुरक्षित होगे क्या? कि आपको जो दिखेगा आप उस पर विश्वास करो और उस पर फिर गतिविधि करो? ऑब्वियसली नॉट। इस पे तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है, हर चीज सही नहीं होती। और इंसान जो दिखता है, अपना इंस्टिंक्ट है कि अपन विश्वास करते हैं और उस पर फिर गतिविधि संचालित करते हैं, वी मे गेट इनटू ट्रबल। आप मेरे को कोई साइबर क्राइम बता दीजिए, मैं आपको पीछे ले जाऊंगा to one point where that person believed what he saw, believed what he heard, and then did something as a result of which he became victim of a crime, a cyber crime. So this is the biggest cause, and this is why it's the biggest threat, because we are human, and because इस दुनिया में अगर रहना है virtual world में, तो हमें अलग mindset बनाना है, एक अलग मानसिकता जो हम नहीं बना पा रहे। अलग मानसिकता बनाइए, जो दिखता है वो शायद होता नहीं भी है, और फिर अपनी गतिविधि संचालित करिए। So as I said, cyber crime is automatic response you need. So even if you know, listen again. And it is a world which is also a world which has enough criminals, crime, difficulties, everything, and they're not even visible. And we are human. You have to have a different mindset. अपनी मानसिकता बदलोगे नहीं, तो आप इस वर्ल्ड में करते रहोगे जो आप कर रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। मानसिकता बदलो, रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक दो, आप ज्यादा सुरक्षित हो। एंड थर्ड चीज, बिफोर आई स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, इज दैट सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? असली दुनिया में आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी खुद की है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हमारी खुद की है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत उपाय करते हैं, घर में ताला लगाते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, रोड क्रॉस करने जाते हैं, सुनी गली में कभी नहीं घुसते, कोई रात का समय हो तो। क्यों? ये सुरक्षा के उपाय हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, हम पूरे समय करते रहते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए।
आपका परिवार आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, समाज करता है, पुलिस करती है, सरकार करती है, आप खुद करते हो। हम सब लोग आप खुद अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास असली दुनिया में करते हैं। और ये बताइए, क्या अपराध खत्म हो गए इन सबके बावजूद? इतना सारे प्रयास, तो सब खत्म हो जाना चाहिए, इट शुड बी पीसफुल रामराज, बट ऐसा नहीं होता, फिर भी क्राइम होता है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स। But not in the virtual world, who is responsible for security? आपकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है वर्चुअल वर्ल्ड में? मैं हमेशा बोलता हूँ, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है, इट्स अ क्राइम बिटवीन अ पर्सन एंड हिज डिवाइस। आपके और आपके डिवाइस के बीच का क्राइम है साइबर क्राइम। आपके और आपके डिवाइस के बीच में क्या आता है? कोई सिस्टम है, कोई इंडिविजुअल है? सोचिए, मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ। फेसबुक आप भी, कई लोग शायद करते हो, मैं भी करता हूँ। फेसबुक में कोई भी प्रोफाइल बना सकता है, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। सपोज मैं एक 16 साल की लड़की बन जाऊं और एक प्रोफाइल बना लूं, तो मेरे को भी रोक सकता है? नहीं। कोई ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है? आज की तारीख में नहीं। तो मैं एक 16 साल की लड़की बन गया, एक प्रोफाइल बना लिया और किसी को भी मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। आपके सामने क्या दिखेगा? एक 16 साल की लड़की। मैं तो नहीं दिखूंगा। गलती से शायद आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, राइट? बिकॉज यू डोंट नो, यू कैन सी मी। बट मेरा ये कहना है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट का बटन दबाया किसने? विक्टिम ने खुद दबाया। मैं तो नहीं आया वहां पे डराने धमकाने की बटन दबाओ, खुद दबाया, है ना? पहला। एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है। एक फोन आता है ना, कोई आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है, लोग गलती से अपनी इंफॉर्मेशन बता देते हैं, अगेन गलती से। बट बताता कौन है? विक्टिम खुद बताता है। कोई नहीं उसको आता उससे फोर्स करने के लिए। एक और एग्जांपल, अगर मेरे को आपके डिवाइस में वायरस भेजना है, करेक्ट, तो मैं अगर कोई ऐसा फाइल बना के भेजूं, ये वायरस है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं ऐसी कुछ चीज भेजूंगा जो आप डाउनलोड करोगे। तो गलती में वो डाउनलोड बटन कोई दबा दे, दबाता कौन है? विक्टिम खुद दबाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके और आपके डिवाइस के बीच का क्राइम, आप ही गलत आदमी को जानकारी दे रहे हो, आप ही गलत फाइल डाउनलोड कर रहे हो, आप ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली धोखे में, बट कर खुद रहे। ऐसे में आपको कौन बचा सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक जानकार, जो दुनिया में अरबों लोग जो यूज करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड, उनके साथ 24 घंटे बैठे रहे और बोलता रहे कि किससे बात कर रहे हो, फोन बंद करो, ये कौन सा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, मत करो, ये कौन सी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, डोंट डू इट। Is it possible that one person can sit with all people in the world to do that 24 hours? No. Is there any system between you and your device? अब करना है, हर बार करना है। मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि क्राइम, security is always a habit. It is not a choice. सिक्योरिटी, सुरक्षा जो है वो आदत होती है, वो विकल्प नहीं होता। आपको हर बार करना है, ऐसा नहीं कभी कभी कर दिया, कभी कभी नहीं किया, कभी कभी घर में ताला लगा दिया, कभी कभी नहीं लगाया। ऐसा करते हैं आप? नहीं करते। जिस दिन आप खुला छोड़ दोगे, आप समझ सकते हो क्या होगा। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में भी, एक तो मैंने सब कुछ बोला, आपको फिर से बोलता हूँ, अगर आप सुन रहे हो, जानते हो, फिर जानो, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होगा। फिर आपका अलग दुनिया है, उसको पहचानो, उसमें भी उतना ही क्राइम क्रिमिनल्स डिफिकल्टीज है, दिखती भी नहीं है, अलग मानसिकता बनाओ और जान के फिर कुछ करो और हर बार करो। आज जैसे मैंने आज मेरी आपने बातें सुनी, मान लो एक चीज आपको हिट कर गई, यस मैं अनजान से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी या करूंगा, तो आज के बाद आपको हर बार करना है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी तो कर लिया और कभी कभी नहीं किया, दैट इज नो सिक्योरिटी। Okay, so remember these things. Now I'll start a quick presentation, which I will do just 2 minutes to, then I will proceed. Okay, I think आपको दिख रही होगी। तो इसमें मेरा ये इनिशिएटिव है ब्लैक रिबन, इसमें मैं पढ़ूंगा नहीं। मेरा जैसे बताया था वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें। मैंने पहले बहुत जगह में पूरी इंडिया में जाता था, सेमिनार्स एंड ये सब करता था, कॉलेजेस, स्कूल सब पे, और अब नहीं जा पा रहा। वेबिनार स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, संस्थाओं के लिए, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के लिए अलग था, and now we have added another one, Sampark Abhiyan. This is webinar based and I am doing it all over India for, again, जितनी ज्यादा लोगों को संदेश जाए, बिकॉज मेरा पैशन है, उतने अगर मेरे बोलने से कुछ लोग भी हेल्प हो जाए, वेरी गुड। मैंने कल ही किया था, परसों किया था झारखंड में, रांची की एक यूनिवर्सिटी में, तो वहां से भी लोग मेरे को फिर बाद में संपर्क करते हैं। आई फील इट इज वेरी यूजफुल, हेल्पफुल फॉर पीपल, एंड मेरी शब्दों से अगर कुछ लोग बच जाएं, बिकॉज देखो, जो घटित हो जाता है अपराध, उसका तो रिकॉर्ड होता है, जो घटित नहीं होता उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। इट्स इंटेंजिबल, बट इट इज अ बेनिफिट। आई कैन नॉट से दैट बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव डन फ्रॉम सो मेनी इयर्स, आई हैव सेव्ड सो मेनी पीपल, 100,000 people from cyber crime. No, I have no record of that, but definitely it must be making a difference.
Today we are together on this webinar, Prevention and Proactive Measures for Cybercrime. Let's talk about it. Before I go any further, मैं आपको 2 मिनट इसके बारे में बताऊंगा about 5 मिनट लूंगा कि साइबर स्पेस क्या होता है. You must know it. You must be knowing it, as I said, but you must know it. You must not be doing it properly. Cyber space, virtual world, digital world, cyber world, आप उसको कोई भी नाम दो, चीज एक ही है. ओके, मैंने इसकी डेफिनेशन कभी देखी नहीं है, ना मेरे को मालूम है, शायद आपको मालूम है, तो आई डोंट नो, बहुत लंबी चौड़ी होगी, अपन को उसमें नहीं पढ़ना. अपन बेसिकली करेंगे कि अपन इस स्पेस में करते क्या है. व्हाट इज द यूज ऑफ साइबर वर्ल्ड? Once you can identify the use, then taken together, that's the world. So once you know the world, then you can talk about security. Now, first is what is the cyber world? Is according to me 5 uses of the cyber world. छोटे छोटे बहुत सारे uses होते हैं, आप ग्रुप कर दो तो 5 होंगे. Let us start one by one. One use, information. सबसे बड़ा use of cyber world is information, सूचना. आज का युग, today's age, कौन सा युग है? This is the age of information. We are all living in information age. सूचना का युग, सूचना क्रांति, information revolution हुई थी 90s में, early 2000 में. Now it is over. We are living in an age where information age it is called. So when it is called information age, today the biggest power is information. There was a writer called Alvin Toffler. He was not a writer, he was an economist, American economist. 40 years back, early 80s में उसको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में. उसने किताब लिखी थी, उसका नाम था द फ्यूचर शॉक. उस किताब में उस व्यक्ति ने एक फ्रेज कॉइन करी थी. दैट फ्रेज वाज इंफॉर्मेशन इज पावर. उस समय आई बिलीव लोग उस पर हंसते होंगे कि ये क्या बोल रहा है. मनी पावर होता है, मसल का पावर होता है, एनर्जी का पावर होता है, इंफॉर्मेशन का क्या पावर होता है? व्हाट इज ही टॉकिंग? बट टुडे इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट पावर फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन. जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन रखोगे और उसको जितनी स्मार्टली यूज करोगे, उतने ज्यादा आप सुखी भी रहोगे, आप सफल भी रहोगे, आप सुरक्षित भी रहोगे, आप सब रहोगे. मैं इतने आपके पास आके वेबिनार के माध्यम से ये सब बातें बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो. क्यों? इतने सारे लर्नेड लोग हो आप. Why are you listening carefully? Because in this field I have more information than you. It is good that you should listen for your sake. आप में से भी किसी को मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मेरे को सुनना चाहिए. I cannot say this कि मेरे को क्या बताओगे. I am so senior, I have done so much work in this field. तू क्या समझाएंगे मेरे को? तुम समझाओगे. अगर मैं ऐसा बोलूंगा मैं अपनी हानि करूंगा. So this is the age of information. Believe it, you know it. That biggest power is information. Correct? Now in the age where the name is only information age, where the biggest power is only information, then for a cyber criminal, which is the biggest power? Information. Of course. साइबर क्रिमिनल को भी इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा पावर है, सक्सेस के लिए, सुख के लिए, सब कुछ के लिए, सफलता के लिए. अब आप ये बताइए, इंफॉर्मेशन किसकी? आपकी. ऑब्वियसली आपकी, मेरी, हमारी इंफॉर्मेशन उसका पावर है. जितनी ज्यादा उसके पास पहुंच जाए उतना ज्यादा वो सफलता से हमको अटैक कर सकता है. करेक्ट? और ये इंफॉर्मेशन उनको देता कौन? ये भी सोचो. 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा, आप खुद देते हो. ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो क्रिमिनल के पास पहुंचती है, जिस आधार पे वो हमारे पे क्राइम करता है सफलता से, वो yes, there are other sources also. There are other sources, but major is ours. Okay? And we keep leaking information all the time. We post किससे शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, कब शेयर. We keep doing leaking information all the time. क्या फोन पे बात कर रहे हैं, किसके फ्रेंड रिक्वेस्ट. We don't even bother. We keep doing it all the time, and when this information reaches the wrong hands, it becomes basis of cybercrime on you, right? आप just for an example, आप देखिए वरुण कपूर, इंडियन पुलिस सर्विस. 2 इंफॉर्मेशन, मेरा नाम, मेरा काम. ये 2 चीजें अगर किसी क्राइम क्रिमिनल के पास पता चल जाए तो जस्ट एस्टिमेट, दिस इज नो रिसर्च, विद एस्टिमेट कि एस्टिमेटेड सपोज 5% उसका सक्सेस रेट हो जाए मेरे को अटैक करके क्राइम करने. 2 इंफॉर्मेशन. नाउ उसको मेरा फोन नंबर पता चल जाए. 3rd इंफॉर्मेशन. फोन नंबर तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, along with your name and your work. Now if he attacks me, maybe he's 50% successful, 15%. Now he gets another information. Varun Kapoor, IPS, dash number, and he's very fond of cybercrime, security, cyber security. 4th information, his success rate may become 25%. Now he finds out that he's also very fond of wildlife photography. It's his hobby. 5th information, maybe his success rate becomes higher. So that's how it goes. More and more information comes into the person's hand, the more successfully he can attack. Obviously, because he will look genuine then. Correct? Now, ये information देता कौन है? मैं खुद देता हूँ. ज्यादातर लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं मेरे साथ. कई लोग आके बोलते हैं कि सर वो बैंक के सर्वर में इतना सारी इंफॉर्मेशन है, वो हैक हो जाते हैं, हमारी कितनी इनसिक्योरिटी है. वो है बिल्कुल. सर गवर्नमेंट के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आधार कार्ड एंड ऑल दैट, सपोज हैक हो जाए तो क्या होगा? बड़ी इनसिक्योरिटी होगी. यस होगी.
बट उनके पास जो इंफॉर्मेशन है आपकी, वो किसी कारण से है. They have collected your information, your data for some work, for some use, and they are doing their best to secure it. They are putting in the best security measures to secure the information they have collected from you for some reason. Let them do the job. They will do it, and they will do it very well. I'm sure of it. You do your job, which you are not doing. अपने बारे में नहीं सोचते कि हम क्या सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन से सिक्योरिटी के लिए करें. मेरा मानना है कि साइबर सिक्योरिटी का बेसिस है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. एंड इंफॉर्मेशन किसकी? आपकी. और सिक्योर कौन करेगा? आप. क्योंकि उसको लीक कौन करता है? आप. और हम अपनी नहीं सोचते, हम दुनिया भर की बातें करते हैं कि वो नहीं कर रहा है, या ये नहीं कर रहा है, या आप करो. किससे शेयर कर रहे हो, कब शेयर कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा. और आज से सोचना शुरू करो. Don't keep on just doing whatever and thinking there is no problem, it's just an activity. It's not an activity. वो सब मैं आपको पहले बता चुका. करेक्ट? तो ये पहली बात. दूसरी बात, इसमें लिखा है over 2 trillion searches on Google in a year, right? So let's just talk about it for 2 minutes. Biggest power in today's world, information. Biggest source of information in today's world, Google. So biggest power in today's world, Google. A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to C. Very simple mathematical formula. हम बचपन में करते थे, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, है ना? तो पर हम सोचते नहीं. गूगल जो कंपनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसी डेटा बेस्ड कंपनीज, ये आज के युग में सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है. सबसे बड़ी. बहुत अरबों डॉलर इनका कीमत है. कैसे कीमत है? एक सुई नहीं बनाते. मतलब दे डोंट प्रोड्यूस एनी गुड्स, नॉट इवन वन नीडल. डू दे? नो. डू दे चार्ज यू एनीथिंग? एक पैसा आपसे नहीं लेते. गूगल के से पैसा दिया कभी, या फेसबुक को या व्हाट्सएप को? कभी नहीं दिया, है ना? एक पैसा नहीं देते. कई लोग बोलते हैं एड से अपना पैसा कमाते हैं. कई कंपनी है व्हाट्सएप ऐसी जो एड भी नहीं दिखाती. और व्हाट्सएप की क्या वैल्यू है? आज की वैल्यू तो मैं नहीं जानता, बट 4 साल पहले जब उसको खरीदा था फेसबुक ने, तो उसकी वैल्यू थी 19.8 बिलियन यूएस डॉलर्स. दैट इज इक्वल टू नियरली 1.5 लाख करोड़ रुपीज. 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी जो एक सुई नहीं बनाती, एक ऐड नहीं दिखाती और एक पैसा नहीं लेती. कहां से पैसा कमाती? आपको शायद मालूम है. आपका डेटा बेच के पैसा कमाती है. करेक्ट? जो डेटा आप बिना सोचे समझे कहां जाते हो, किससे मिलते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है, कौन सी जगह में टूरिज्म में जाते हो, सब हम बताते रहते हैं बिना सोचे समझे. इसको बेच के अरबों डॉलर कमाते हैं. करेक्ट? मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अपराध करते हैं आपका डेटा बेच के, ये कमा के. आप ही उनको अधिकार देते हो टर्म्स एंड कंडीशंस को आई एग्री करके. कभी नहीं पढ़ा उसको, बट आई एग्री कर दिया. करेक्ट? ठीक है, किया आपने, गुड. पर वो आपका डेटा बेच के अरबों डॉलर कमाते हैं. तो मेरा ये कहना है कि वो डेटा, वो तो किसी क्रिमिनल को नहीं बेचते, बट वो इंफॉर्मेशन जो इतनी आई टोल्ड यू बिफोर, कितनी खतरनाक हो सकती है. अगर वो एक हाथ से दूसरे हाथ से होते गलत जगह पहुंच जाए, तो फिर क्या करेगी? इट विल बिकम दिस बेस ऑफ साइबर क्राइम ऑन यू. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, योर इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी, मतलब कितनी प्रेशियस है कि उसको बेच के अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं. और आपकी इंफॉर्मेशन इतनी खतरनाक भी है कि उसको यूज करके आपके ऊपर बहुत भयंकर साइबर क्राइम भी किया जा सकता है. तो उसको सेव करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है. करेक्ट? अगर मैं आपको आज एडवाइस दूं कि फेसबुक बंद कर दो करना, व्हाट्सएप बंद कर दो करना, ये बड़ी अच्छी चीज है, आप कर दोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा सिक्योर हो जाओगे. बट आप करोगे क्या? नहीं करोगे. तो फिर मैं ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा. मैं ऐसी एडवाइस दूंगा, आप जरूर करिए, बट क्या कर रहे हैं उसको तो देखिए. कितना कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. जस्ट थिंक, देन डू. You will definitely make a difference to your security level, and as a result, you will definitely make a difference to the cyber security threat that you are facing. Okay, one. Second, commercial activity. This is very, online banking, online shopping, transfers, transactions, payments, whatever. It's a very big source in this cyber world. एक ये इसका second use है. Third use है communication, संवाद, emails, SMS, phone calls, big source of communication. Fourth is social networking. This also I'll just stop here for 2 minutes to make you understand the difference between communication and social networking. There is a difference. People are not realizing it. ये वो समझ नहीं रहे कि communication is not social networking, and that is why they are making a mistake. देखिए, साइबर क्राइम में बोलता हूँ 2 धारी तलवार है. अगर आपने गलती करी असली दुनिया में, आप क्राइम का शिकार हो सकते हो. घर में ताला नहीं लगाया तो चोरी हो सकती है ना? गलती करी, क्राइम का शिकार. वर्चुअल दुनिया में अगर आपने गलती करी, आप क्राइम का शिकार तो हो ही सकते हो, बट आप गलती से अपराधी खुद भी बन बैठ सकते हो. गलती करके, मतलब गलती से गलती करना भी गलती होती है.
ये याद रखिएगा। आप कोई कानून नहीं है दुनिया में, या कोई कानून का रखवाला नहीं मिलेगा दुनिया में जो बोलेगा कि आपने गलती से गलती करी, कानून तोड़ा, कुछ नहीं होता, जाओ अगली बार मत करना। नहीं, गलती से गलती भी गलती, और उसके लिए आपको सजा मिलती है। तो इस देश का कानून जो है फॉर साइबर क्राइम, इट इज कॉल्ड IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब या तो आप इस कानून को जान जाओ कि इसमें क्या लिखा है, क्या गलत है क्या सही है, या फिर आप इस फर्क को पहचान जाओ कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में, तो फिर आप गलती से गलती नहीं करोगे। आइदर ऑफ द टू थिंग्स। कानून जानना इज मोर डिफिकल्ट, है ना, तो ये फर्क समझना इज मोर इजी। तो इसको तो समझो, कानून जान जाओगे, वेरी गुड, बिकॉज एवरी सिटीजन शुड नो द लॉ of what he is doing. That's up to you. If you know it, very good. And if you want to know it, even better. But if you don't want, and then you cannot know the law, then at least know this difference. Now I'll tell you quickly what this difference is. Communication and that आप अपने digital footprints अच्छे से अच्छे बनाओ। कभी गलती से भी गलती मत करना ये सोच के कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं शायद, या मैं बहुत स्मार्ट हूं, या शायद मेरे तक नहीं को पहुंच पाएगा। आप तक पहुंच जाएंगे, टाइम लगेगा, but you will be found. And so as a common user, you know, all of us are good people, good users. We are not any wrong intention users. So by mistake also don't make a mistake, and don't make your digital footprints as good as possible so that you don't get into trouble. Okay, now with this I will start the main crimes. See, crimes are बहुत ज्यादा हैं साइबर वर्ल्ड में, बहुत टाइप के क्राइम्स हैं, और ये सारे अब भी हो रहे होंगे। अगर मैं इनके एक एक करके बताने लगूं तो मेरे को कल तक लग जाएगा समय। तो मैंने इसलिए आइडेंटिफाई करे हैं मेन क्राइम्स जो इस लॉकडाउन एरा में हो रहे हैं, इनके बारे में जरा ध्यान से सुन लो। फिर बाद में इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट अदर क्राइम, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इफ आई नो द क्वेश्चन। सी, आई एम अ पुलिस ऑफिसर. I am not a very big cyber software expert. I am not some gadget guru. I don't claim to be a computer wizard. I am not. I am a police officer dealing with cyber crime, cyber security. Please talk to me about that. I will answer. But if you start asking me, wo gadget aisa gadget, I don't claim, and I'm not interested in those. The other people maybe. I am a police officer, and I will tell you about security and crime. Okay. So first crime जो आज के युग में बहुत हो रहा है, मैंने 3 ऐसे main groups identify किए हैं. Please listen to them. Is phishing. Phishing is attack which is very big cyber crime in the normal day also. आपने भी ये शब्द सुना होगा और इसको सोचा होगा हाँ ठीक है होता है, but it is a very big crime and it is done in many ways which I will discuss with you, and it is not that small, and you must understand the scales, must understand the concepts, then you can save yourself better. So let us start with phishing. Phishing comes from the word fishing with an F. वो इंग्लिश का वर्ड है, आप जानते हो मच्छी पकड़ना। मछुआरा जाता है तालाब पे, नदी पे, समुद्र पे, जहां भी जाता है, अपना एक कांटा फेंकता है, लाइन फेंकता है विद हुक, देन वेट्स। हजारों फिश वहां से निकलती होंगी, एक पकड़ी जाती है। मछुआरे का काम बन जाता है, वो हजारों को पकड़ना भी नहीं चाहता। दैट इज फिशिंग। नाउ इफ यू ऐड अ PH, इट बिकम्स अ साइबर क्राइम, फिशिंग। दैट मीन्स द सेम थिंग। आप एक कांटा फेंको और फिर वेट करो, हजारों पकड़ा गया एक। तो वैसे ही आप एक ईमेल बनाओ, एक SMS बनाओ, हजारों को भेजो, एक फोन कॉल करो, हजारों को करो, एंड देन वेट। सब लोग नहीं पकड़ेंगे, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, है ना। बट टेक्नोलॉजी माय फ्रेंड्स हैज मेड आवर लाइफ वेरी सिंपल, हैजंट इट। सब चीज आज के युग में जो हमारा अच्छाई है ना, हम कहीं भी बैठे किसी को फोन लगा लो, कहीं भी बैठे कोई मनी ट्रांसफर कर दो, कहीं भी बैठे कोई टिकट बुक कर लो, देयर सो मच, इट हैज एम्पावर्ड अस सो मच, इट हैज गिवन अस सो मच कंफर्ट, सो मच सुविधा, साधन, इतनी चीजें दे दी टेक्नोलॉजी ने, आगे और भी देगी। टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ ऑल गुडनेस व्हिच इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड, इज इट नॉट? इट इज। तो हमको इतना एम्पावर किया टेक्नोलॉजी में, हमको इतनी सुविधाएं दी हैं, तो एक साइबर क्रिमिनल को भी उतनी दी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड बाय हिम आल्सो। देयर इज नो वे दैट यू कैन स्टॉप अ क्रिमिनल फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी, कैन यू? यू कैन नॉट। तो हमको जो एम्पावर किया है, हमें जो सुविधा साधन दिए हैं, उतने ही एक क्रिमिनल को भी दिए, अनफॉर्चुनेटली। ये मन में रखना। हमारे लिए जिंदगी इतनी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी से, उसके लिए भी उसकी काम इतना आसान हो गया है टेक्नोलॉजी से। हमारे लिए सफलता और सक्सेस और सबका राज है टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी सफलता और सक्सेस का राज है और सुख का राज है टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसीलिए इट इज बिकम अ बिगर क्राइम, बिगर मेनेस। फिशिंग बेसिकली इज अकॉर्डिंग टू मी चीटिंग। असली दुनिया का अपराध चीटिंग। चीटिंग करने के लिए अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो किसी के पास जाता है, उसे अपनी जाल में फंसाता है, उसको अपनी बातों पे वर्गलाता है, उसको अपने भरोसे में लेता है, फिर कुछ करता है ताकि उससे प्राप्त कर सके जिसके लिए वो चीट करता है। कितना एफर्ट लगता है, कितना टाइम लगता है, तो शायद सक्सेसफुल हो, शायद ना भी हो। फिर वो दूसरे के पास जाएगा, वन एट अ टाइम, सो मच टाइम, एफर्ट, एनर्जी, एंड देन ही मे बी कॉट, सम टाइम मे बीटन अप, वो भी डेंजर, सो मच डेंजर, एफर्ट, कितना होता है। बट फिशिंग, साइबर क्राइम, सो सिंपल। अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे हजारों ईमेल भेजो, हजारों फोन कॉल करो,
हजारों SMS करो, से मतलब देन वेट, जाल फेंक दो, वेट करो, कुछ तो फंसेंगे, है ना। और कुछ समय नहीं लगेगा, एक साथ कितने सारों को, कोई एफर्ट भी नहीं लगेगा, घर में बैठे बैठे आराम से, और कोई डेंजर भी नहीं पकड़े जाने का, है ना, immediately on the scene of crime. So it is absolutely a very very insidious crime and it is happening at a large extent and आपको उससे बचना है तो आपको कुछ करना है ना। एंड मैं आपको स्केल्स बताऊंगा, डोंट टेक इट एज ए जोक के एज ए चलो फिशिंग। मैंने बहुत साइबर एक्सपर्ट्स को सुना है पहले और अब भी सुनता हूँ, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इधर उधर की देते हैं, फिशिंग ये वो, और चले जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, क्या होता क्या है। ठीक है, शब्द सुन लिया, बट कैसे होता है, कितनी तरीके हैं, इससे बचना कैसे, वो नहीं बताएंगे। बड़े बड़े बात, ये फिशिंग वो फिशिंग, they will not tell the concepts. I will tell you, please listen carefully. एक चीज और बताऊं, मैं इसकी स्केल में बता रहा था, डोंट थिंक इट्स वेरी स्मॉल। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। देखिए, एक फिशिंग किट आती है ब्लैक मार्केट में, फिशिंग किट फॉर सेंडिंग रैंडम ईमेल्स, फिशिंग ईमेल्स मीन फंसाने के लिए। और डर से फंसाते हैं वो, या फिर प्रलोभन से फंसाते हैं, है ना, डर या प्रलोभन, फियर और इंड्यूसमेंट, करेक्ट। तो ऐसा ईमेल बना के हजारों लोगों को भेजना पड़ता है, फिर वेट करते हैं। ऐसा एक किट आता है मार्केट में, ब्लैक मार्केट में, वो किट 5 लाख रैंडम ईमेल आईडी पे फिशिंग ईमेल आपने जो बनाया भेज देगा। और उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है $65। एक ईमेल, एक किट 5 लाख ईमेल के लिए $65। रिमेंबर दिस फिगर। नाउ सिस्को इज अ कंपनी इन अमेरिका, उसने एक स्टडी करी थी, साइंटिफिक स्टडी, कि ईमेल अटैक से जो फिशिंग होता है उसमें कितना सक्सेस रेट है। उनकी स्टडी के मुताबिक अगर 1 मिलियन मतलब 10 लाख फिशिंग ईमेल भेजे गए तो कितने लोग फंसते हैं, 8 आउट ऑफ अ मिलियन। यू विल फील अरे यार व्हाट इज हॉरिबल, यार क्या यार, ये तो कोई सक्सेस रेट ही नहीं है ना। बट जस्ट लिसन, 8 लोग फंसते हैं 10 लाख ईमेल भेजने में, करेक्ट। नाउ ये 8 लाख एवरेज, 8 लोग एवरेज पे $2000 उनको नुकसान होता है, मतलब क्रिमिनल $2000 उससे ले लेते हैं, करेक्ट। नाउ सी द स्केल्स, $65 फॉर सेंडिंग 5 lakh emails phishing. So if you have to send 10 lakh, how much? 2 kits, that means $130. And then how many people you track? 8. मान लो 8 each losing $2000. So how many dollars? $16,000. Return investment $130. Profit 12,000%. Good. ऐसा कोई बिजनेस होता है? कम ही होते होंगे जो 12,000% आपको मिल जाए रिटर्न घर बैठे बैठे बिना किसी प्रॉब्लम के। Just imagine, 36 billion emails are sent every year on the internet. 36 billion, उसमें बहुत सारी फिशिंग ईमेल्स होती हैं। अब आप वो सब कैलकुलेट करते रहो तो आपको पता चल जाएगा कितना इसका, कितना पैसा सिर्फ फिशिंग ईमेल में इन्वॉल्व है। बाकी भी बहुत तरीके हैं। ओके, दिस इज इट, इट इज नॉट सच ए स्मॉल ऑफेंस एंड इट लुक्स वेरी स्मॉल, बट अब मैं इसके तरीके बताऊंगा, है ना। ये भी मैंने एक पूरा उसका एक वो बनाया है लेआउट, कैसे कैसे होता है, ताकि आप जानोगे ये भी होता है फिशिंग, ऐसे ऐसे होता है, तब फिर आप उससे बचोगे। ओके, पहला तरीका है वायरस इंजेक्शन थ्रू फिशिंग। फिशिंग के थ्रू एक वायरस भेजना ताकि आपके डिवाइस में वो वायरस डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाए और फिर वो आपका डेटा या आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर सके। डेटा थेफ्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट वायरस, एंड हाउ? थ्रू अ फिशिंग मेल, थ्रू अ फिशिंग अटैक। नाउ एक तरीका इज दिस ईमेल, फिशिंग ईमेल टू सेंड वायरस टू यू। ओके, अब ये मैंने रैंडमली स्लाइड्स बनाई हैं, कुछ अमेरिकन होंगी, कुछ कैनेडियन बैंक्स होंगे। डोंट थिंक दैट दिस ओनली हैपेंस देयर, डजंट हैपन हियर। ये मैंने रैंडमली लिया है, इसलिए इट विल अपीयर लाइक दैट। नाउ सपोज समबडी हैज टू सेंड अ, मैंने आपको पहले बोला था, वायरस अगर मेरे को आपको भेजना है और मैं एक फाइल भेज दूं आपको जिसमें लिखा है ये वायरस है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप कभी नहीं करोगे। तो आपको ऐसी चीज डाउनलोड करोगे जो मैं जिसमें मेरा वायरस एम्बेडेड होगा, आपको तो लगेगा जेन्युइन, और वो एम्बेडेड मेरा वायरस उसके अंदर रहेगा, वो आपको कभी दिखेगा नहीं। तो जैसे ही आप वो फाइल डाउनलोड करोगे, मेरा वायरस भी डाउनलोड कर लोगे। तो ऐसे कुछ ईमेल भेजेंगे वो आपको, उसमें कुछ प्रलोभन देंगे या कुछ डर दिखाएंगे जैसे मैंने बोला, और उसमें ये रेड बॉक्स जैसे है उसमें एक अटैचमेंट होगी, राइट। उसमें दिस इज ऑडियो फाइल। ओके, सो साइज ऑफ दैट ऑडियो फाइल और द वीडियो फाइल और द डॉक्यूमेंट और द फोटो which they want, which are making you download, will depend upon the size of the virus which I'm going to send you. Okay, so because it has to be contained inside, it has to be attached to the file, it cannot be bigger than that file itself. So they will send you some email like this, आपको डराएंगे या आपको फंसाएंगे एंड आपको ये इसको क्लिक कराएंगे। तो हम लोग तो ऐसे ही सोचते हैं ना, कुछ भी दिख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ऐसे कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। आपने जैसे ही उसको क्लिक किया उस डाउनलोड बटन को, इस फाइल को, तो वो फाइल डाउनलोड होगी, मेरा वायरस भी साथ साथ डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको दिखेगा नहीं। वो फाइल आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगी, फिर खुलेगी और मेरा वायरस भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसके बाद आपने उसको देखा, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आपने जो भी किया उसको डिलीट कर दे, जो करना कर, पर मेरा वायरस आप डिलीट नहीं कर पाओगे, because that virus is programmed to be downloaded with that file but not deleted with that file.
Now it is left behind. Now that virus can be backdoor, rootkit, Trojan, adware, spyware. There are so many types. उसकी डिस्कशन मैं नहीं करूंगा. But आज के बाद शायद मेरा वायरस जो है आपके आज के बाद जो भी आप टाइप करोगे वो सब पढ़ सकेंगे. आज के बाद जो भी आप बात करोगे शायद वो सुन सकेंगे. आज के बाद जो भी आप साइट विजिट करोगे शायद वो देख सकेंगे. तो आपका जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड्स, अकाउंट नंबर, व्हाटएवर, व्हेन यू टाइप इट, दे विल गेट इट एंड देन दे विल अटैक योर बैंक एंड क्लीन इट. So this is one way. Virus attack. Injection through phishing. It can be also done through an SMS. SMS भेजा with one link. क्या लिखा है ऊपर? Important upgrade on your mobile account. Kindly follow the link. आप उसको दबाओ. नीचे क्या लिखा? Failure to comply might lead to suspension. डर कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, मोबाइल का अकाउंट. तो आप करोगे, चलो करते हैं. And make a video फर्जी and write in it कि शिमला यूनिवर्सिटी, APG यूनिवर्सिटी में ये हो गया, उसमें भ्रष्टाचार हो गया, कुछ भी. और उसका मैं बनाऊंगा, अपना वायरस अटैच करूंगा, भेज दूंगा आपको. कितने लोग उसको खोल के देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे? आप खुद भी देखोगे. हाँ, मैं भी शायद आज के बाद देखता, क्यों आपकी यूनिवर्सिटी में मैंने दी है. तो एनी as soon as you open it, my virus is in place. So it can be also done through a post. So email, virus injection for an email with attachment, SMS with a link, or a post with a malware. Malware is malicious software, is a virus. Okay, this is one way. The second way is phishing link to fake site. This is the second way. कि आपको फिशिंग लिंक भेजेंगे, फिशिंग ईमेल अन्य माध्यमों से, और आपको एक फेक साइट पे ले जाएंगे, है ना. ये जनरली बैंक्स की, इंश्योरेंस कंपनी की, फाइनेंशियल कंपनीज की साइट्स पे होता है, उसके संबंध में होता है यहाँ पे, या फिर स्टॉक ब्रोकिंग साइट, समथिंग लाइक दैट. ताकि आपका किसी तरह से एक फेक साइट पे ले गए, वहां आपको अपनी इंफॉर्मेशन डलवाई और फिर उनको वो मिल जाएगी. पहला वायरस इंजेक्शन मीन आपके यहाँ वायरस भेज दिया, फिर उन्होंने जान लिया. हाँ, आपसे, आप इसमें आपको एक साइट पे ले गए और आपसे खुद ही डलवा दिया. Ultimately, their aim is to get your username, password, account number, and then attack your accounts and other things. जैसे इसको देखो, ये है FTC refund. ये अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल ट्रेड कमीशन. नाउ दिस इज अ कमीशन. जैसे ट्रेड जो करते हैं लोग, जो व्यापार करते हैं, उसे रजिस्टर करते हैं, इसमें कुछ टैक्स भरते हैं, व्हाटएवर, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ऐसी एक साइट है, और उसमें ऊपर क्या लिखा है? FTC रिफंड. रिफंड मतलब पैसा आ रहा है. पैसा आना किसको नहीं अच्छा लगता है ना, सब खुश हो जाता है, अरे आ रहा है. आप ये भी नहीं सोचते कि मैंने कोई रिफंड के लिए अप्लाई किया है, कहीं मेरे रिफंड की पात्रता है, ये हम नहीं सोचते जनरली. ऐसा लिखा है रिफंड, FTC मतलब हमको रिफंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? लालच. तो ऐसा कुछ आपको भेजेंगे. फेडरल ट्रेड कमीशन लिखा है, उसके बाद उसका ईमेल आईडी लिखा है, secretary@ftccomplaintassistant.com, है ना. तो आप बताओ, आपको ऐसे ईमेल आईडी कितने याद है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिफंड सेक्शन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, आपको मालूम है? ई फाइलिंग साइट का नहीं मालूम? आपको मालूम है कि अगर कोई बैंक का आपका जो है, उसमें कंप्लेंट सेक्शन का क्या ईमेल आईडी है? मालूम है? नहीं मालूम. उनको मालूम है, आपको नहीं मालूम. तो इसलिए वो ये ऐसे लिखते हैं, फेडरल ट्रेड कमीशन, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन एंड ऑल दैट, कोई भी ऐसा आईडी बना देते हैं और हम जनरली याद नहीं रहता, एंड वी बिलीव इट, बिकॉज हमें जो दिख रहा है हम उस पर विश्वास करते हैं. बट एक चीज और याद रखो, अगर ये secretary@ftccomplaintassistant.com अगर ये उनका ओरिजिनल आईडी भी है FTC का, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने आपको ईमेल भेजी. उसको बोलते हैं स्पूफिंग. स्पूफिंग मतलब ये भी टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड है, ये भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि अगेन ऐसे ना सुविधा बहुत देती हैं, सबको देती हैं, क्रिमिनल को भी देती है. स्पूफिंग मतलब होना कुछ, दिखाना कुछ. ये ईमेल आईडी जिससे आया है, आपको दिख रहा है, वो ये है, बट जरूरी नहीं है कि उससे आया है. इट इज कॉल्ड फेक मेलिंग. तो ये भी हो सकता है, होना कुछ, अगर शायद इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मालूम नहीं है तो वैसे ही आप फंस गए कि भाई ये तो होगा FTC का आईडी, और अगर मालूम भी है और सही भी दिख रहा है, तब भी आप गलती कर सकते हो, बिकॉज ये चेंज भी हो सकता है. कॉल स्पूफिंग भी होती है. मैं आपको अपने नंबर से कॉल करूं, इंटरनेट कॉल, और कुछ और नंबर दिखाऊं, ये भी संभव है. SMS स्पूफिंग भी होती है. तो ये सब होता है, तो इसलिए अपन को इसका ध्यान देना है. तो ऐसी एक आईडी दिखी और ऐसा एक रिफंड का दिखा, पैसा आ रहा है, नीचे लिंक लगा हुआ है ब्लू में, इस लिंक को दबाइए, FTC की साइट पे जाइए, लॉग इन करिए, अपना मतलब डिटेल डालिए, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और अपना पैसा रिफंड पाइए. करेक्ट. हम सोच रहे हैं पैसा आ रहा है, हमने दबा दिया, एक साइट खुलेगी. अब वो साइट लगेगी जेन्युइन, उसका कलर, उसका फॉन्ट, उसका लेआउट, उसका डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल साइट जैसे रहेगा. फर्स्ट नजर पे आपको लगेगा यस, अगर आप उस साइट पे पहले जा चुके हो कि ये तो FTC की साइट है. बट ऊपर जो URL होता है, जो एड्रेस बॉक्स, वो अलग होगा. उसको हम देखते नहीं है जनरली, बिकॉज जैसे आप फेसबुक खोला तो आपको फेसबुक दिखा, तो आपको लगता है फेसबुक आ गया. डू यू कीप रीडिंग द URL की क्या लिखा है? जनरली यू डोंट, बिकॉज यू बिलीव व्हाट यू सी. तो वो भी ऐसा आपने दबाया, फेक साइट खुली जो ओरिजिनल लगती है, आपने वहां पे लॉगिन करा, अपना सब डिटेल डाला, यूजर नेम, अकाउंट नंबर, जो भी है, पासवर्ड, और वहां पे गए, वहां से रिफंड कुछ होगा, आपने बटन दबाया, उसमें लिखा इतना रिफंड आपको आ गया. आप सोच रहे हैं वाह पैसा मिल गया यार,
बट वो पैसा रिफंड आपको नहीं हुआ है, अब वो फंड आपका निकाल लेंगे बैंक से एंड आपका बैंक क्लीन कर देंगे, बिकॉज दे हैव गॉट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। नाउ नीचे अगर आप कभी भी इस जो लिंक पे अगर आप कभी अपना कर्सर और माउस लगाओ तो नीचे ये लाइट ब्लू जो बॉक्स है उसमें एक्चुअल साइट एड्रेस है जिस पे आप जा रहे हो, उस पे लिखा है mirusarleva.ru, मतलब ये रशियन साइट है, पर वो दिखा क्या रहे हैं, ftc.gov/refund मींस यूएस की FTC की साइट वो दिख रही है, पर आप जा उधर रहे हो, इसको बोलते हैं हाइपर लिंकिंग। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन साइबर क्राइम। मतलब आप कोई साइट कुछ और है, मैंने बोला ना लिखेगी वैसी बट उसका आईडी कुछ और है, बट आपको दिखाई रहे हैं, दैट कैन बी आल्सो डन हाइपर लिंकिंग। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दिस इज वे ऑफ ईमेल फिशिंग लिंक से आपको फिशिंग साइट पे ले गए। दूसरा, इट कैन बी डन थ्रू SMS। आप देख रहे हो यहाँ पे, योर क्रेडिट कार्ड हैज बीन टेम्परेरीली सस्पेंडेड, डर अनलॉक कर रहा है, इस पे दबाइए। कैनेडा ट्रस्ट इज अ बैंक, तो आप इस बैंक के इसमें दबाओगे तो आप सोच रहे हो कि आप कैनेडा ट्रस्ट के पेज पे जाओगे, बट आप एक्चुअली फर्जी साइट में जाओगे और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे। तो वो था प्रलोभन से ईमेल, ये था डर से, ये भी संभव है। अब ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, फिशिंग के माध्यम से वायरस भेजना और फिशिंग के माध्यम से आपको फेक साइट पे ले जाना, ये दो तरीके हैं जिसमें वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे प्राप्त कर लेते हैं और फिर आपका फंड ट्रांसफर करते हैं। दे कैन नॉट गेट कैश, they will transfer your fund from your account to either a mobile wallet or a shopping site, and then they will buy some goods or some service recharge या जो भी कराएंगे। तो इसमें आपका धन उनको नहीं मिलता, इसमें वो धन आपका ट्रांसफर करा के उसको फिर यूज करते हैं। They cannot get the cash, but there's a third way is when they get a cash. Phishing by temptation. Phishing by temptation मतलब क्या, आपको डायरेक्टली अटैक करते हैं, आपको खुद और आपके बारे में जान के। मैंने बोला ना सोशल इंजीनियरिंग नीचे लिखा है इसमें ग्रीन में, मींस सोशल इंजीनियरिंग मींस आपके बारे में इंफॉर्मेशन की इंजीनियरिंग, और हम ज्यादा देते हैं। वरुण कपूर साइबर, मेरे पास भी आते हैं ईमेल, जो आपको हमने चुना है, अमेरिका की संस्था है, आपको हमने चुना है एक अवार्ड देने के लिए यूएस में। मैं अगर प्रलोभन में आ जाऊं कि अरे वाह देखा मेरा नाम यूएस तक पहुंच गया, अब तो इंडिया छूट गया, आई एम इंटरनेशनल लेवल, और उसमें एक साइट दी होगी, इसमें दबाइए, हमारे बारे में जानिए। आप जैसी वो साइट दबाओगे एक फेक साइट खुल जाएगी। साइट तो कोई भी बना सकता है, बहुत उसमें अच्छी अच्छी चीजें लिखी होंगी, बोले वाह व्हाट बड़ी अच्छी संस्था है, और फिर मैंने उनके साथ पैसे का आदान प्रदान चालू कर दिया एंड आई एम गॉन। टेम्पटेशन, वो नौकरी के नाम पे हो सकता है, लॉटरी के नाम पे हो सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड, इन्विटेशन फॉर एन इवेंट, रिलेशनशिप, बेसिकली आपसे रिश्ता बनाना, आपको फंसाना और फिर आपसे पैसे लेना। और वो कभी भी बड़ा, ये मत सोचना कि सिर्फ अनअवेयर लोग और थोड़े कम जानकारी वाले लोग ही फंसते हैं। मैंने अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, बैंकर्स, साइंटिस्ट, मैं इसरो में भी गया हूँ, मैं DRDO में भी जाके लेक्चर दे चुका हूँ। रॉकेट भेज देते हैं चांद तक, बट उनको अपनी डिवाइस की सिक्योरिटी नहीं समझ आती है ना। ये है लेवल। देखिए तो किसी के साथ भी हो सकता है। डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू हैपन ओनली टू अनअवेयर एंड अनएजुकेटेड पीपल, नो, it can happen more with you because this attack is only for people who are more ज्यादा यूज करते हैं सोशल में, ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, है ना। सो और वो एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं मांगेंगे, वो हमेशा 2000 5000 ही मांगेंगे, वो कभी भी 2 लाख 5 लाख नहीं मांगेंगे, बिकॉज जैसे ही उन्होंने 5 लाख बोला, 2 लाख बोला, कोई नहीं देने वाला, 10 बार सोचेंगे। बट छोटा अमाउंट मांगा, आप दे दोगे, चलो अच्छा है, शायद सही बोल रहे हैं, ट्रांसफर फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, हैंडलिंग फीस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और आपसे पैसे लेते हैं और लोग देते रहते हैं। और जब कुछ मिलता नहीं है एंड में, थोड़े दिन बाद आपको लगता है ये क्या हो रहा है, पैसे ही दे रहा हूं मैं, और उसके बाद आप 1-2 प्रश्न पूछते हो, तब वो आपसे कम्युनिकेशन जनरली बंद कर देते हैं। फिर आप उनको ढूंढते रहो, शायद डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, आप ढूंढ लोगे, ट्रैक कर लोगे, ट्रेस कर लोगे। तो हो सकता है वो बैठे हों नाइजीरिया में, क्या करोगे। कल ही मेरे को एक प्रोफेसर का फोन आया, मैंने आपको बताया रांची से, उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ था, पेटीएम एंड ऑल के करके उनसे 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। उन्हें सारी जानकारी ले ली, पुलिस को दे दी, साइबर सेल के रांची के, उन्होंने पकड़ भी लिया अपराधी, बट पैसा नहीं मिला। नाउ शी इज रनिंग अराउंड फॉर कि मेरा पैसा कैसे मिले, है ना। तो सी देयर इज अ बिग चैलेंज, सो बेटर आप इसमें फंसो ही ना, इस प्रलोभन में आओ ही ना। एंड अगेन इट इज बेस्ड ऑन जानकारी जो आप देते हो, है ना। So you have to be very careful of what you're doing, what you're giving, and then what you're believing. Once you're given it, then how much you believe. Okay, this is the third way. इसमें उनको कैश मिल जाता है। Fourth way is wishing. Wishing is phishing through a voice call. वॉइस कॉल, फोन के थ्रू। अभी तक मैं ईमेल, SMS एंड ऑल दैट बता रहा था, सोशल मीडिया, ये है फोन के थ्रू। आज के युग में जो ये लॉकडाउन पीरियड है, ये सबसे पोटेंट अटैक है, बिकॉज इट इज डूइंग लॉट ऑफ डैमेज। आज का तनाव का टाइम है, अभाव का टाइम है, लोग आराम से फंस रहे हैं जाल में, बिलीव कर रहे हैं, डर में आ रहे हैं और प्रलोभन में आ रहे हैं। घर में आपको सब्जी भिजा देंगे, घर में आपको दूध भिजवा देंगे, घर में हम आपको ग्रोसरी भिजा देंगे, मेरे को भी ईमेल आते हैं, है ना। और घर में आपको लिकर भिजा देंगे, कहीं वो शौकीन उसके भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए अभाव एंड तनाव,
आपके यहाँ पे हमने पता चला है कि कोविड का केस है, अभी हमारी टीम आ रही है और नहीं भाई हमारे यहाँ तो कोई कोविड का केस नहीं, लाइक दैट, डर या प्रलोभन। एंड देन दे टेक योर यूजर नेम, अकाउंट नंबर, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी, नेम ऑन कार्ड, एक्सपायरी, सब कुछ प्राप्त करते हैं, लोग खुद देते हैं। मैंने ऐसे बहुत के बैंक मैनेजर्स तक दे देते हैं। कैन यू इमेजिन? दे गेट इनटू दिस अटैक एंड ट्रैप्ड, एंड बैंक मैनेजर जिसको मालूम है ये सब नहीं देना किसी को, वो भी दे दे। मैंने ऐसे केस भी देखा है। कैन यू इमेजिन इट? सो एनीबडी कैन गेट ट्रैप्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इसमें जो दिखता नहीं है दिखाया जाता है, सुनता नहीं है सुनाया जाता है, आपको सही भी लगता है बिकॉज ऐसा लगेगा जेन्युइन है। स्पूफिंग वो भी है। फिफ्थ इज स्मिशिंग। स्मिशिंग इज सेम थिंग एज विशिंग बट थ्रू एसएमएस, वही यूजर नेम पासवर्ड एंड ऑल लेना। तो ये 5 तरीके मैंने आपको बता दिए, ये है फिशिंग के तरीके। अब आपको 5 पता है। फिशिंग वायरस भेजने के लिए, फिशिंग फेक साइट पे ले जाने के लिए, कोई ईमेल आए तो अटैचमेंट को डाउनलोड करना, नो अननोन सोर्स का फोन कॉल आए उससे बात करते रहना, कुछ नहीं, एसएमएस आए उससे आप लिंक दबाना, नो। अननोन सोर्स यू डोंट हैव टू हैव कॉन्टैक्ट, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रलोभन हो, कोई भी डर हो, आपको बोलना है नो, कट द फोन, डिलीट द email, delete the SMS, don't have contact with the unknown is the best way. But I told you before, they can also do spoofing. They can show you as if it is original and it may not be. So second part is, first is unknown है, छोड़ दो. मेरी तरफ से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, आ सकता है मेरी फोटोग्राफ की तरफ, मेरे को आप नहीं जानते, डिलीट, रिजेक्ट, मतलब डोंट. अगर जानते हो तो फिर दूसरा पार्ट है वेरिफिकेशन. आपको इतना प्रयास करना है, लगता है मेरे नाम से तो कोई बना ले एक प्रोफाइल आपको भेज सकता है, नो प्रॉब्लम, मेरी फोटो भी लगा सकता है. बट अगर आप मेरे को जानते हो तो फिर आपको एक्सेस होगा मेरे पास दूसरी तरीके को, फोन नंबर होगा, कुछ होगा, मेरे को फोन लगाओ, मेरे से आके मिलो, पूछो कि आपने किया है मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं बोलूं नहीं, तो फिर आप उसको गलत मानो, है ना. देन वेरीफाई. आपके बैंक से कोई फोन आए कि आपका ये हो रहा है, कार्ड ब्लॉक हो गया, अपना वो बोले ठीक है आप रख दो. थोड़ी देर बाद आप उस बैंक को अपना नंबर पता करके फोन लगाओ, उनके कंप्लेंट सेक्शन में बात करो कि मेरा ये नाकाम जो भी है, आपने मेरे को क्या फोन किया था फॉर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है, वो बोलेंगे नहीं, आपको कंफर्म हो. सो फर्स्ट इज रिजेक्ट एनीथिंग, नो कॉन्टैक्ट विद अननोन. अगर अननोन है तो कॉन्टैक्ट रखना ही नहीं. बेस्ट वे फिशिंग अटैक से या साइबर क्राइम के बहुत सारे तरीकों से बचने के लिए. एंड सेकंड इज, अगर लगता भी जेन्युइन है तो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है माय फ्रेंड, यू मस्ट वेरीफाई. ओके, देन यू विल बी मच बेटर ऑफ, मच सिक्योर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ फिशिंग अटैक्स. और सेकंड ग्रुप ऑफ क्राइम इज सोशल मीडिया. मैं इसको भी जल्दी से बता दूं, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, ये मैं मानता हूं, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूं. टूल फॉर चेंज, टूल फॉर डेवलपमेंट, टूल फॉर इंप्रूवमेंट. आज की तारीख में जो चेंज आ रहा है वो सोशल मीडिया उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है. वेरी गुड थिंग फॉर गुडनेस, बट इफ इट इज ओनली फॉर गुडनेस. बहुत चीजें हैं जो इसको अच्छाई कर रही हैं. आज की इंप्रूवमेंट जो दुनिया में आ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, न्यू आइडियाज, देन इंप्रूवमेंट, देन री इम्प्लीमेंट, व्हाटएवर, फीडबैक, everything is social media based and it is a very wonderful thing for change and wonderful thing for development and improvement, no doubt. But everything जिसमें अच्छाई है बुराई भी है. हमारा मोटो अच्छाई से बचो, अच्छाई को अपनाओ, बुराई से बचो. तो बुराई जो है, जो मैंने आइडेंटिफाई करी, मैं आपको बताता हूँ, इनसे बचिए. अच्छाई तो आप करिए, बिल्कुल करिए. Overuse of social media should not be done. I don't have to explain it. It causes mental problem, it causes physical problem, backaches, watery eyes, spondylosis, depression, suicides, violent behavior. All kind of things result from overuse. Please don't do it. Today's lockdown time, we are doing a lot of social media within limit. ज्यादा अच्छा खाना भी अच्छा नहीं, ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं, कुछ भी ज्यादा हो, अच्छा भी हो तब भी अच्छा नहीं. तो सोशल मीडिया अच्छा बहुत है बट ज्यादा अच्छा नहीं. तो ज्यादा से बचो. You must limit the use of social media. That is very important for you and for your children. Second, social media and fake news is a big problem. आप इसको प्लीज रियलाइज करो, अपने माइंड में रखो. सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आता है, सारा कंटेंट नहीं, न्यूज कंटेंट, सो कॉल्ड न्यूज कंटेंट, नॉट ऑल कंटेंट. सोशल मीडिया पे जो न्यूज कंटेंट आता है, रिसर्च बताती है कि 70% मे बी फेक और फॉल्स. फेक मतलब बड़ा चढ़ाकर, फॉल्स मतलब पूरा झूठा, पुरानी चीज दिखा देंगे, बहुत पुरानी, कहीं किसी और देश की, किसी और की चीज दिखा देंगे, लोग बोलेंगे अरे ऐसा हो गया, और फिर उस पर, क्योंकि हम तो जो दिखता है विश्वास करते हैं, फिर प्रतिक्रिया, फिर क्रिया, फिर एक्शन, रिएक्शन, व्हाटएवर, ओपिनियन, हॉरिबल, किसी और देश का, किसी और समय का. एंड morphing is also possible, my friend. Morphing is modification, digital modification of photos, of videos, like that. 2-3 फोटो ज्वाइन करके एक बना देंगे, ऐसा लगेगा कि अरे ये तो ओरिजिनल है, बोलेंगे अरे माय गॉड ये हो रहा है, एंड हम लोग एकदम से प्रतिक्रिया देते हैं. एंड दैट्स व्हाट दे वांट. सो प्लीज keep it in mind that social media पे fake news is a problem and 70% may be fake, so you have to first verify and then proceed. Please do not form an opinion. मैं इंदौर जोन में भी एडीजी था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले.
बहुत से केसेस हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। बच्चा चोरी, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी अफवाह फैल रही थी, बच्चा चोरी हो रहे हैं, बच्चा चोरी हो रहे हैं, पैनिक फैल गया था। कई लोगों को गाँव में, कई मोहल्लों में अनजान व्यक्ति बच्चे से बात करके मारते थे, मार डालते थे या उसको इंजर करते थे। एंड एक भी केस नहीं था, ऑल बेस्ड ऑन सोशल मीडिया, फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, हिस्टीरिया। ये नहीं करना, वेरीफाई करना है और फिर करना है। So please be careful. Third is social media panic and fear mongering. Very easy. It comes from the fake news. Next stage, panic and fear फैल जाता है और लोग फिर irrational behavior करते हैं और यही चाहिए। Human beings are known for rational behavior, सोचा समझा एक्शन रिएक्शन, बट जब आप तनाव में, फियर में आ जाओ और पैनिक में आ जाओ, तब आप जो एक्शन लेते हो, रिएक्शन देते हो, वो irrational होता है। और शायद ऐसे तत्व यही चाहते हैं। तो इनसे बचना है, फेक न्यूज है मानना है और फिर उसी को वेरीफाई करना है और फिर प्रतिक्रिया या कुछ सोच बनानी है। एंड फोर्थ इज मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया किसी भी हाल में आपके द्वारा खुद नहीं करना है। नेवर, डोंट इवन थिंक, बिकॉज इट कैन कॉज ग्रेट हार्म। इट विल कॉज ग्रेट हार्म टू योर सोसाइटी, टू योर कंट्री, एंड बिगेस्ट माय फ्रेंड ग्रेट हार्म आई थिंक इट विल कॉज इज टू यू योरसेल्फ। ओके, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि सोशल मीडिया का मैं स्वयं मिसयूज करके ऐसी तनाव, अफवाह, ऐसी गलत चीज फैलाऊं, क्योंकि पहली बात, अगर वो कानून के खिलाफ है तो आपकी रिपोर्ट हुई, आपको सजा मिली, डिजिटल फुटप्रिंट्स आप नहीं बच पाओगे। एंड सेकंड, जैसे मैंने बोला, बहुत नुकसान होगा, आज हो रहा है कई नुकसान, कई लोग अपने इस देश में, समाज में, पूरी दुनिया में एक्चुअली थ्रू मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। So please do not misuse it anytime. No overuse, no misuse. Fake news होती है, उसको ध्यान से मन में रखो, वेरीफाई करो, और फोर्थ, पैनिक एंड फियर में मत आओ, राइट? ये 4 चीजें फॉर सोशल मीडिया। लास्ट कैटेगरी इज मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। आप बच्चे नहीं हो, आप में से कहीं युवा हो, आपको खुद मॉनिटर करना है, और जो बाकी यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को मॉनिटर करना है, बिकॉज बहुत सारा समय डिवाइस के साथ बिता रहे हैं बच्चे। एक बहुत बड़ा युवा, नेक्स्ट स्टेज थोड़ा बेटर, बट फिर भी वो भी आर बिग टारगेट्स ऑफ साइबर क्राइम, स्पेशलाइज्ड साइबर क्राइम व्हिच आर सो मेनी, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लॉकडाउन टाइम्स इवन मोर, एज आई सेड, बिकॉज हम डिवाइस के साथ बहुत सारा समय बिता रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 मैंने इसमें आइडेंटिफाई करे हैं, मैं जल्दी से बता दूं, बट अदरवाइज युवा हो, आपके लिए ज्यादा लोग मॉनिटर क्या करना होता है। हम रियल वर्ल्ड में अपने बच्चों को साधन सुविधाएं सब देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, सब देते हैं, बट माता पिता का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉनिटरिंग। हम अपने बच्चों को मॉनिटर करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कब पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, सब करते हैं असली दुनिया में। ये उनके विकास के लिए, उनके भलाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर देम। सेकेंड इज वर्चुअल वर्ल्ड में कितना मॉनिटर करते हैं हम? मेरे विचार में बिल्कुल नहीं, 0। ये इसलिए क्योंकि पहली बात, हमारे को उनसे कम पता है। Children and youth know more about this virtual world and the concepts and the gadgets and the systems than us, unfortunately. Second is that we don't have time. Everyone feels we are so busy. Even in time when we are locked down, we can do nothing. We still feel we have no time. There is one Peter's principle. आपने सुना होगा, रजत जी ने तो सुना होगा कि the work expands to fill the time available. मतलब आपका कुछ भी नहीं हो फिर भी टाइम नहीं रहता, बिकॉज वर्क पता नहीं क्या करते हो, फिर भी टाइम है, कम है। तो इस टाइम में भी लोगों के पास टाइम नहीं है, बट टाइम निकालो। एंड थर्ड इज दैट हमारे पास इंटरेस्ट भी नहीं है, बिकॉज हमें लगता है हमारे बच्चे सामने तो बैठा है, कंप्यूटर ही तो कर रहा है, तो ठीक है, ठीक ही होगा, ठीक ही होगा नहीं, मैंने बोला इसमें उतने ही खतरे हैं, ज्यादा हैं, दिखते भी नहीं है। तो टेक आउट टाइम, हैव सम इंटरेस्ट एंड गेट सम नॉलेज, मॉनिटर योर चिल्ड्रन, बिकम देयर फेसबुक फ्रेंड्स, इंसिस्ट ऑन इट, स्क्रीन शेयर करो उनके साथ, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डालो उनके उसमें ताकि आपको भी दिखे वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। You must do it, because otherwise you'll be failing as a responsibility as a parent or as a teacher, guru. Okay? 3 मैंने बताए हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन गेमिंग, ये एक गेम मतलब खेल, मतलब बहुत अच्छा, नो। ऑनलाइन गेम बहुत अच्छा, नो, ज्यादा। WHO ने इसको क्लासिफाई किया है आज की तारीख में एज अ मेंटल डिसऑर्डर, ज्यादा करना, मतलब एडिक्शन से भी आगे निकल गया है, अभी बीमारी की श्रेणी में आ गया है। तो कृपया करके इसको अपने बच्चों को देखो। जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग सम गेम दैट डजंट मीन ही इज वेरी नाइस, इज गुड। एक तो गेम बहुत ही खराब होते हैं, कहीं वायलेंट गेम्स होते हैं। अगेन दिस इज लीडिंग टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिहेवियर इन चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग वायलेंट बिहेवियर, डिप्रेशन एंड सुसाइड। I was just reading 2-3 days back in a paper, वियतनाम का केस था, 80-year-old grandmother murdered by 15-year-old grandson because she did not give him $6 for playing an online game. Why? Because that game which he was playing was violent game, and violence की मानसिकता नहीं दिया, मार डाला। तो imagine, so you have to monitor your children. Gaming should be within limits again. समय निर्धारित करो, implement करो। But I'm sure it will cause a lot of stress with your child. आजकल नहीं मानते बच्चे,
इतनी जल्दी, बट आपको करना है, आपका काम है। एंड दूसरा, गेम कौन सा, ये भी मॉनिटर करो। ऑल दोस वायलेंट गेम्स शुड बी नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट। सेकेंड इज ऑनलाइन बुलिंग, साइबर बुलिंग। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। आई थिंक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो दिखता भी नहीं है। इंसीडियस, इसको बोलते हैं इंसीडियस क्राइम, जो दिखता नहीं है बट बहुत बुरा प्रभाव होता है। बुलिंग, रैगिंग का प्रभाव वैसे ही बहुत बुरा होता है बच्चे पे की मानसिकता पे, बट उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी ऐड कर दो, इट बिकम्स साइबर बुलिंग एंड साइबर ऑनलाइन बुलिंग, इट इज बिकम इवन वर्स। बिकॉज व्हाई? पहली बात, साइबर बुलिंग इट स्प्रेड्स फास्टर। मतलब आपको एक बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है, सबको पता चल जाएगा, वाइडर ऑडियंस। ये दूसरा है। बुलिंग मतलब क्यों बुरा लगता है बच्चे को? मैंने कई स्कूल्स कॉलेजेस में पूरे देश में जाता था, मैं पूछूं, ये बोलते हैं कि सर दूसरों के सामने होता है तो बुरा लगता है, अकेले में तो लगता ही है, दूसरों के सामने और भी बुरा। तो रियल बुलिंग में मतलब आप किसी बच्चे को तंग कर रहा है तो 2 बच्चे और सुन लेंगे और बुरा लगेगा, 2 सुन लेंगे और बुरा लगेगा। बट ऑनलाइन में तो सारा स्कूल जान जाएगा, एक ही वही कंटेंट, वही वीडियो आप पोस्ट कर दो, सबको पता चल गया। वर्स्ट, तो इट इज वाइडर ऑडियंस, स्प्रेड्स फास्टर, थर्ड फॉलोज चिल्ड्रन होम, घर तक नहीं छोड़ता। मैंने बताया ना 50% समय बिताते हैं ऑनलाइन, और अगर ये स्कूल कॉलेज में हो रहा है और वो ऑनलाइन आ जाए घर पे और उस पर भी चलता रहे, तो ये डैमेज इज फॉर द होल डे। एंड इसमें मैंने बहुत केसेस देखे, बच्चा खाना छोड़ देते हैं। मेरे पास पूरे इंडिया से फोन आ, मैंने आपको बताया मैं जाता था, अभी भी संपर्क में हूँ, तो मेरे को पूरे इंडिया से फोन आते हैं, ईमेल आते हैं, SMS आते, सब आते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, बच्चे खाने छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, बाहर जाना छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। और मेरा पूरा मानना है पक्का, मैंने इतने केसेस देखे हैं कि ये जो क्राइम है, ये एक बच्चा ही दूसरे बच्चे पे करता है अपने मनोरंजन के लिए। और मेरा बहुत बड़ा मन में सुदृढ़ विचार है कि कोई भी बच्चे को भी अधिकार नहीं है दूसरे बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। ऐसे बच्चे को भी सजा मिलनी चाहिए और कानूनी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे कॉलेज और स्कूल को भी सजा मिलनी चाहिए अबेटमेंट का, जो इसको रोकते नहीं। बिकॉज यू कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय अ स्टूडेंट्स लाइफ एंड हिज फ्यूचर जस्ट फॉर समबडीज एंटरटेनमेंट। इट कैन नॉट बी डन। तो इसको आपको देखना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को जो सुझाव देता हूं वो ये है, पहली बात, डोंट एंगेज द बुली, मतलब उसके साथ बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स, फर्स्ट। सेकंड चीज क्या करनी है आपको? सेकंड चीज करनी है, उसको कांटेक्ट तोड़ दो, उससे उसको अनफ्रेंड कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, नो कांटेक्ट। सेकंड। थर्ड, सेव एविडेंस। यू मस्ट, अगर उसके कुछ करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो अगर कोई बनाया है उसको डाउनलोड करके रखिए, सेव करिए। यू मस्ट हैव एविडेंस अगर आपको नेक्स्ट कदम उठाना है। थर्ड एंड फोर्थ, टॉक टू एन एडल्ट, मेक अ रिपोर्ट। आपको अपने एडल्ट से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, माता पिता से बात करनी है, उनसे गाइडेंस लेना है, और अगर जरूरी है तो रिपोर्ट करना है, बिकॉज सजा भी मिलनी है ऐसे लोगों को, तभी बंद होगा ये, है ना। तो इसलिए आप भी ध्यान दीजिए प्लीज, अपने बच्चों से देखिए क्या हो रहा है, व्हाट आर दे डूइंग, जस्ट ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम। आर दे नॉट, इसके शिकार तो नहीं हो रहे, वो बताएंगे नहीं आपको, और वो शिकार हो जाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा जब तक आपको पता चले, और परमानेंट डैमेज होता है मेंटल। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, तो बी केयरफुल, दिस इज पार्ट ऑफ योर मॉनिटरिंग। लास्ट इज ऑनलाइन ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब तैयार करना, ये भी बहुत बुरा अपराध है। तैयार करते हैं, बच्चों से दोस्ती करते हैं बच्चा बन के। बच्चे क्या होता है, बच्चा बाय नेचर वेरी इनोसेंट, कुछ भी मान जाएंगे, एंड बच्चे बाय नेचर वेरी एडवेंचरस, कुछ भी कर लेंगे। तो उसको वो बच्चा बन के दोस्ती कर लेंगे, दोस्ती करके दिखाएंगे जैसे कि ये हमारी सीक्रेट विक्रेट, उनकी सीक्रेट जान जाएंगे, और फिर उनसे ब्लैकमेल करके तस्वीरें मंगवाएंगे, पीडोफिलिया तक मामला चले जाता है, पूरी बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज उसको तो समझ भी नहीं आता बच्चे को कि क्या हो रहा है। बाय द टाइम इट इज वेरी लेट। एक बहुत खराब केस था कनाडा का, उस लड़की का नाम था अमेंडा टॉड। 15-year-old गर्ल, शी कमिटेड सुसाइड। शी पोस्टेड अ यूट्यूब वीडियो, उसमें उसने फ्लैश कार्ड्स दिखाए थे कि उसके साथ क्या बीती उसकी जिंदगी में और क्या हो गया। एक किसी ने उससे दोस्ती करके बच्चा घर बन के उसकी तस्वीरें मंगवा ली अश्लील, और फिर उसको ब्लैकमेल करता था, पता नहीं क्या करता था, बुली करता था। शी हैड अ टेरिबल लाइफ। ऐसे बहुत केसेस होंगे, आपको ध्यान देना है। तो इन तीनों चीजों पे, इसके अलावा भी बहुत है, बट इनको तो कॉन्सेंट्रेट करिए। आप युवा हो, अगर स्टूडेंट हो, तो आपको खुद बचना है इनसे, है ना। वट एवर आई सेड, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट योरसेल्फ, बिकॉज पेरेंट्स रोल बिकम्स लेस। नाउ इट इज अप टू यू। सो यू, इफ यू आर बीइंग ऑनलाइन गेमिंग, कैसे करना है मैंने बताया। बुलिंग हो रही है, क्या करना है। ग्रूमिंग, शिकार नहीं होना, है ना। तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द 3 थिंग्स। बाकी बहुत है, मैं बाद में कभी बताऊंगा, कभी शिमला यूनिवर्सिटी आऊंगा, जब ये आपका लॉकडाउन खुल जाए, रूबरू लोगों से चर्चा करूंगा। इट विल बी ग्रेट फन। लाइव सेशन एनी डे इज बेटर देन दिस वेबिनार, बट एनीवे 5 की पॉइंट सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मंत्र है, मेरी जो बातें हैं शायद याद ना रहे, ये याद रखिए जरूर। हमेशा एक अलग मानसिकता बनाइए, ये अलग दुनिया है, मानसिकता सुरक्षा की बनाइए इसमें भी, और फिर उसमें लागू करिए और हर बार करिए, यू विल बी सेफर। प्लीज
have a mindset of security. It is not fun and games, this virtual world. It is a world, it has as many dangers and as many challenges you have to recognize, and you have to do something and have a separate mindset. Second, avoid shortcuts, avoid greed. लालच से बचो, शॉर्टकट से बचो. लालच मतलब घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ता, ये नहीं बनता. सारे साइबर क्राइम जो होते हैं साइबर वर्ल्ड में ऑन फाइनेंशियल, मोस्टली बेस्ड ऑन आवर फीलिंग ऑफ ग्रीड. रिफंड आ गया, ये आ गया, ऑल दोस थिंग्स, है ना, अवार्ड मिल गया, रिवॉर्ड. ऐसा नहीं होता. आपको काम करना पड़ता है, फिर आप जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हो. इसको माइंड में रखो, इसको मोटो बनाओ, तो आप इसमें शायद नहीं पड़ोगे. शॉर्टकट से बचो, मेरा मतलब कुछ भी लिंक दबा के कहीं भी चले गए. लिंक से टेक्नोलॉजी वेरी नाइस, ये दबाया उधर गए, ये दबाया उधर गए, ऐसे मत करो. कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, कोई भी फोन कॉल में जानकारी दी, शॉर्टकट्स हैं. वो कोई भी फाइल डाउनलोड कर ली, लिंक दबा के. अगर आपको SBI की साइट में जाना है, कोई लिंक दी है, डोंट, व्हाई डू यू हैव टू प्रेस इट? व्हाई कांट यू टाइप इन द एड्रेस बॉक्स www.sbionline.com and enter? You will reach the original site. You will not go to a fake site in case that was a fake link. तो आपको उतनी मेहनत करनी है, शॉर्टकट्स नहीं. शॉर्टकट आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकते हैं. लंबा रास्ता चुनो, मेहनत करके डेस्टिनेशन तक पहुंचो. थिंक बिफोर यू एक्ट. कुछ भी करने से पहले सोचो. सोचा समझा निर्णय ज्यादातर सही, जल्दबाजी में लिया निर्णय ज्यादातर गलत. दिस इज अ कहावत, वेरी बहुत पुरानी. तो जस्ट थिंक व्हाट यू आर शेयरिंग, फॉरवर्डिंग, लाइकिंग, पोस्टिंग. एक बार जस्ट थिंक. If you are thinking for 2-3 seconds, 4-5 seconds, and you then decide that it is the correct thing to do, then do it. But don't do it without thinking, because that may land you in trouble. Fourth is have full knowledge. पूरी जानकारी रखिए. Information is power. Information is power even for security. So have full knowledge, implement that knowledge, implement it every time. You will be in a better state than you are today before you started this session. And last is, in cyberspace, do not trust everything blindly. Basically, you are only interacting with a screen. There is no person, there is no situation, there is nothing. एक स्क्रीन है जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हो. इस पे तो आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जा सकता है. हर चीज सही नहीं होती है, करेक्ट? तो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली. मेरा फेसबुक का पेज है www.facebook.com/Black Ribbon Initiative, मेरे इनिशिएटिव के नाम से. इस पे मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत आर्टिकल लिखता हूँ, आपको बताया. मैं सब इस पे डालता हूँ. इन्फॉर्मेशन इज पावर. दिस इज सोर्स ऑफ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. मैंने बहुत कम देखी है ऐसी साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के स्रोत. आप प्लीज इस पे आइए, इसको लाइक करिए. इस पेज को जैसे आप लाइक करोगे और आपके अपडेट्स ऑन होंगे, नेक्स्ट टाइम मैं इस पे कुछ पोस्ट करूंगा, आपको उसकी फीड मिलेगी. अगर टाइम है पढ़ लो, नहीं टाइम है अगली बार पढ़ लो, बट आपके पास एक्सेस भी होगा. एंड दिस इज माई email ID and my WhatsApp number. As I said, I get contact from all over the country. If you want, you can contact me. If you have an issue, if I can guide you, advise you, I will do it. And if I can help you, I will also try. But you can contact me. You can have problems. You can also want some session later on. You can contact me here for some other college, some other university. You can do it. I will be only too happy to help as according to the time I have. Now, this is what I had to say. Rajat ji, बहुत लंबा हो गया, but इसके बाद कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए. Sir, this was a eye opener for everybody. Amazing. I mean, जो आपकी depth है knowledge की, वो देख के I think everybody has. I'm getting so many questions. I'm getting so many responses that it is overwhelming. We've done so many webinars, but the kind of response that I'm getting today is amazing. Some very pertinent questions which have come up. Yeah. Is one of them is, supposing we feel that a cyber crime has been committed, what are the first steps that we should take immediately? साइबर क्राइम देखिए, कमिट हो जाएगा तो आपको तो पता चलेगा बहुत बाद में, बट अगर कमिट हो गया तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू डू फॉर डिफरेंट थिंग्स. बट आई बिलीव यू शुड ट्राई टू मेक अ रिपोर्ट एज फार एज यू कैन इफ यू आर द विक्टिम. बट फाइनेंशियल वाला साइबर क्राइम जो है ना, उसमें पैसे का एंगल बहुत होता है. That you want your money back also, but that money definitely may not come after you arrest those criminals. That is the second stage. So I would always recommend that you first also try to block your card or contact your gateway so that your money is frozen and you may get it back after verification. Rather than the second stage would be the report if it is financial based. Otherwise, you must report. That is the citizen's job, and you are a victim, so you have to report. So which is the appropriate agency where we report? Is it the police or is it the government? Is it the bank? Which is the most appropriate authority that we should report to? देखिए,
Bank के लिए again it's for the financial part and the blocking the card and all those things. Gateway is for freezing your money transfer when it is moving, and police is for reporting the criminal part of it. तो पुलिस में मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ दैट यू शुड पीपल कीप आस्किंग किस में करेंगे देखिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है आई एक्चुअली डू नॉट नो दीज सिस्टम्स देयर बट वन सिस्टम इज देयर कॉमन फॉर एवरीवन दैट यू शुड मैं हमेशा भी ये बोलता हूँ कि यू मस्ट रिपोर्ट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपका जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन है उसमें आपको रिपोर्ट करनी चाहिए आईटी एक्ट के लिए भी वो एम्पावर्ड है दे विल टेक द प्रिलिमिनरी एक्शन if you find that your cyber crime is very complicated and it is interstate, international, then you can approach your cyber cell if there is something like that. Because in Indore, in MP, we have it, and its headquarters Bhopal mein, and you get offices in major places of MP. So you can, if it is a more complicated one, you can approach them. Some cities have crime branches which are having officers dealing with cyber crime. So it depends on your area, but best your own police station where you are residing. Great, sir. Absolutely. Should we not incorporate cybersecurity as part of the curriculum? I think it is such an important thing. As an academician, when I'm listening to this, I think people like you should come up to the government and tell them that this should be part of every curriculum in every school. Of course, it is. That is the part that is called cyber education. I have been trying for it for very long. And I have been हमने syllabus भी बनाया है ये बनाया but see school के लिए curriculum में इसका part करना is very necessary because if you plant these ideas and these concepts when the person is very young then it remains with that person forever that you know very well your educationist तो वो बहुत जरूरी है and वो करना चाहिए and it करना पड़ेगा मतलब in due course मतलब US में FBI has made special courses and it is part of the curriculum from 5th and that's why US may be the largest user of the internet but it is not even in the top 20 in cybercrime so their systems must be very good I'm sure for security cyber security but as I said cyber crime से आप खुद अपने आप को बचा सकते हो तो वो इतनी टॉप 20 में भी नहीं है बहुत पीछे है उनका नंबर साइबर क्राइम में जो हो रहा है तो उसका कारण एक चीज जरूर होगी कि जो उनके बच्चे बचपन से अवेयर है या बचपन से एजुकेटेड है इन दिस रिस्पेक्ट दैट इज वेरी नेसेसरी इट शुड बी डन Sir, there are some very interesting questions also. One of them is, and this is a concern for everybody, how safe is cloud computing and cloud storage? Yeah, this is a question I've heard many times. It is, my whole effort and my whole session is based on what we can do, right? Sir. So cloud computing, cloud data storage is also very safe. The people who are doing this, they are doing their best to secure the data. There is no question, but still there can be some. You can put 1,000 locks in your house, but that doesn't mean it cannot be burgled. ये जरूरी नहीं है. है ना तो they are also doing their best. It must be very secure, but please concentrate on what we are doing. That you should change. Your behavior you should change. Your data security you should do as much as possible, which, as I said, is the main source of crime. Those are sources also that आपका data वहाँ है वो hack हो जाए कई बार new things come up. Imagine ATMs being hacked. Their जो routers हैं and millions of card का data पहुँच गया China and they were using that password. People don't change those PIN numbers. So that challenges are always there. They will always remain. है ना आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट का चैलेंज तो हमेशा रहेगा बट दैट डजंट मीन यू लीव ड्राइविंग बट यू हैव टू ड्राइव सेफली सो दैट्स व्हाट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू पीपल दैट आप लोग खुद अपनी बिहेवियर देखो अपना इंफॉर्मेशन सिक्योर करो अपना बिहेवियर करेक्ट करो तो आई थिंक यू विल बी मच बेटर ऑफ those people who are responsible for clouds for servers for let them do their job and they will do a good job I'm sure of it you can do nothing about it so why bother you can do only what you are doing. Absolutely. And one very nice question which has come up is what is the gravest cyber crime that you have solved and what was the punishment awarded? Which is the gravest cyber crime? Yes. The most serious or the most interesting cyber crime that you have solved and what was the punishment which was awarded? Cyber crime basically बहुत टाइप के हो रहे हैं but there's so many cyber crimes I can think of so many of them there was one lady she was a teacher of a very big school in Indore and then she got a very good job in a university in Ahmedabad she went there and she took that job and suddenly she gets an email saying that we have seen your profile very good we want to offer you a job in US and this great person didn't even think that she was maybe
that she never even applied for the job or whatever. Why is she getting this offer? And she went ahead and started giving money, and she ended up giving 3.5 lakh rupees. Then she approached, when she realized, वो जैसे मैंने बोला, तो फिर उसको हमने solve किया. We got a hold of 2.5 lakhs back for her. So that is one case. There is another very interesting case. मतलब see, financial crime ज़्यादा होता है इस पे. There are other cases also of grooming, of people losing their lives, and there are many cases like that. So एक case बड़ा अच्छा था. There is an old person, he is a pensioner. He was pretty old. He was around 75 years old. Now, this gentleman was a South Indian living in Indore. Now, he must have worked in Chennai also long back, 20 years back. But there he must have got some policy. Can you imagine how far they go back to get information and how much they can attack you? They got hold of this information that he had bought an insurance policy for his grandson, maybe 20 years back, and never paid the premium and all that. It had lapsed, and he had also forgotten about it. Now he had become very old. So old people very gullible. They know that. Children very innocent. Old people very gullible. मतलब आराम से मान जाते हैं. बच्चे बिना जाने कुछ कर देते हैं, है ना? So they phoned him one day and said कि आपने ऐसी policy खरीदी थी, ये वो बातों में लिया. He said हाँ खरीदी तो थी. And then they started trapping him. You want it revived? You can pay this much amount and it can be revived, and then you'll get your 2 lakhs. 2 lakh की थी शायद उस समय की. You can't believe it actually, but if you come to Indore Cyber Cell, we registered the case there, you will believe it. 4 years they kept doing this with him, fishing with him. And you know how much money they took from him? 45 lakhs. Which is amazing. But for a policy which is 2 lakhs, that gentleman, that old person was so, I don't know what he gave, 45 lakhs. And then he came to us, we registered the case, we tracked and traced. We got the track of Chennai. And we then my team went, they ended up arresting 2 people there who were involved in it. One they got, one they didn't get. They could identify both. Then from him, the interrogation, they found his bank accounts. In his bank account, one of the accounts, they found 1 crore rupees lying. Oh my God. That was frozen. And we challaned that case was tried, it was found correct. And that gentleman, after I think 2.5 years, he got back his 45 lakhs. So it was great, very great relief for such a senior citizen to help him and get such a huge amount and all of it back. He was very lucky, I say, but we did it. So there are many cases like that, and satisfaction when people get justice. That's amazing, sir. Thank you very much for this lovely session. I'm sure we all are very, very enlightened, and now whenever I will open my email, I'll be triply sure what and who is sending me the mails, and so I will become aware and more conscious, and so will all our listeners here today. Thank you very much for such a lovely session, sir. Thank you for sparing so much of time with us, and I can assure you we will call you to Shimla, and Shimla being a very beautiful place, you will love the hospitality and our university. Sure. Thank you very much. As soon as the lockdown opens, we will. Absolutely, sir. Absolutely. Over to you, Kuldeep ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Varun Kapoor, sir. We have been a very wonderful session you hold for us. And I hope that every participant, I have seen so many messages coming in the chat box. It was a wonderful session, informative, very basic things which you advised. These are very basic, but you told that please be habitual on those. That information is very important. You be informed, knowledgeable, but not sufficient. You must be aware of that, what you are doing. Self mindset and secured and safe mind is very important. So these are the main key points. I think these key points you shared with your 100% experience on field, which you gained during your this cyber security field. So we are very lucky, sir, today that you had with us and a wonderful session, and you organized this successfully. And we are blessed that we have now a very wonderful information to keep it with us and to have a safe mindset, secure mindset when we are going to play with the digital world. Thank you so much. Dr. Rajat Mathur, sir, thank you so much. You have moderated this session wonderfully, and you have given total input what the participants wanted from their side. And this has been shared with the Dr. Varun Kapoor, sir, and he responded very wonderfully. And now every participants, I think, hope that they enjoyed this session and will take it in their life when they are going to have digital world and whatever activities they are doing into that. Thank you so much. I just want to
I am over to Dr. Ramesh, sir, our Vice Chancellor. Please, for some closing remarks, concluding your remarks on this webinar. Thank you so much. Hello. I just looking, Ramesh Chaudhary sir is with us. Yeah. Over to, yes, sir. Yeah, it was amazing webinar, and really, as our Honorable Chancellor has stated, this was the most successful webinar so far the Shimla University has organized. I'm really thankful to Dr. Varun Kapoor sir and Dr. Tushar Nath ji. He is also with us, sir. And the chat box is full with the praise. The people have given so much compliment. They really found very worth to participate this webinar. And already our Chancellor has extended the invitation. We will love to see you, and we will feel honored to welcome you at Shimla, sir, sometimes. Thank you, and take care. Indore, we are getting bit disturbing news, and I have a great affection with Indore. I had a very good time in Indore 2.5 years. So I miss my Indore. I used to be in touch with so many people. Please take care, sir. Stay at home and take care. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, all Thank the you. participants. Thank you. Thank Please allow me to attend this, leave this session, please. Thank you Thank so you. much.